سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ السلام کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات اقدس کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا بہترین انداز میں بندوبست فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت کاملہ کو اور اپنی تائید واضحہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کر اپنے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح اور بلیغ عنوان جس کا تعلق استقامت فی الدین کے ساتھ تھا، اسی حوالے سے میں نے ایام ذی الحجہ کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اعلیٰ انمول سیرت کا ذکر آپ حضرات کی گوش گزار کرنا شروع کیا تھا، اور اس حوالے سے میں نے بہت سی اہم گزارشات کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً اس بات کو رکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کے عالم کے اندر بت گدے کے اندر جا کے کلہاڑے کو چلا دیا، آپ نے اجرام سماویہ کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا کہ مومن و مسلمان کی جبین نیاز نہ سورج کے سامنے جھکتی ہے، نہ چاند کے سامنے جھکتی ہے، نہ ستارے کے سامنے جھکتی ہے۔ مومن و مسلمان اپنی گردن کو جب بھی جھکاتا ہے اللہ کم الحاکمین کے آستانے کے اوپر جھکاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دربار نمرود میں جا کر اللہ کم الحاکمین کی حاکمیت کو وعدے فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کو ٹالنے کے لیے ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ایک مجرم کو آزاد کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل قطعی کو لے کے آئے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَآتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ وہ ہے
जो सूरज को मशरिक से लेके आता है, अगर तू रब है तो सूरज को मगरिब से लेके आ, फबुहित अल्लज़ी कफर। तो ऐसे आलम के अंदर काफिर के मुंह के ऊपर चुप की मोहर लग जाती है, काफिर बिल्कुल लाजवाब हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहाँ पर नमरूद की रऊनत को नहीं देखा, जहाँ पर बस्ती वालों की बुत परस्ती को नहीं देखा, अजराम समाविया की पूजा को नहीं देखा, वहाँ पर वो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के अंदर भी बेकरार रहे, मोहब्बत के अंदर भी बेताब रहे। हज़रात गिरामी कदर, दो ही इम्तिहान होते हैं ज़िंदगी में, या खौफ का इम्तिहान है या मोहब्बत का इम्तिहान है। रोब भी दिल के ऊपर अल्लाह का मुल्हाकिमीन का होना चाहिए, हशीयत भी उसी की होनी चाहिए, और खौफ और उसी की बारगाह के अंदर हादरी का एहसास इंसान के दिल के अंदर कवी अंदाज के अंदर मौजूद होना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के सबसे चुने हुए गिरोह के बारे में इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के आलिम बंदे होते हैं। आलिम को पता होता है मेरी हकीकत क्या है, मेरी हैसियत क्या है, कायनात की हकीकत क्या है, कायनात की हैसियत क्या है। कायनात परवरदिगार आलम के मुकाबले में ज़र्रा नाचीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला इतने बड़े हैं, इतने बुलंद बाला हैं कि क़यामत के दिन वो पूरी की पूरी कायनात को, आसमान व ज़मीन को अपने दाएं हाथ के अंदर बंद फरमा लेंगे। हज़रात गिरामी कदर, जब पूरी कायनात परवरदिगार आलम की मुट्ठी के अंदर मौजूद है तो फिर हमारी हैसियत व हकीकत क्या है। चुनाचे पुरसचे यौम हिसाब के डर से आलिम बंदे कब कपाते रहते हैं, उनको रातों को नींद भी नहीं आती। वल्लदीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, अल्लाह से मुलाकात के एहसास की वजह से एकदम वो रातों को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े हो जाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, वो मेरी हशीयत की वजह से रातों को कम सोया करते थे। उनके पर एक ही खौफ होता था कि किस तरह उन्होंने मुझसे मुलाकात करनी है, किस तरह मेरे सामने कामयाब होना है। हज़रात गिरामी कदर, दूसरा इम्तिहान मोहब्बत का इम्तिहान है। जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी मोहब्बत अल्लाह से इंतहाई शदीद होती है। व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गैरुल्लाह को पूजते हैं। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, उनसे वैसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लेकिन मोमिन मुसलमान की मोहब्बत अल्लाह से होती है और इंतहाई शदीद होती है। वो अल्लाह वाला होता है, उसके दिल के तारों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा किसी की मोहब्बत नहीं होती। उसका दिल जो धड़कता है परवरदिगार आलम की मोहब्बत का धड़कता है, वो पूरी की पूरी कायनात को अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले के ऊपर तज करने के लिए आमादा और तैयार हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जो हैं, आपने कलाम हमीद में मोहब्बत के 3 ही मराकज़ बतलाए हैं कि जिन मराकज़ के तहत ही तमाम मोहब्बतें जो हैं मोहब्बतों के ताबे होनी चाहिए, उन मोहब्बतों से मशरूत होनी चाहिए। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अगर तुम्हें अल्लाह रसूल जिहाद फी सबीलिल्लाह के मुकाबले में बाप से प्यार ज्यादा है, बेटे से प्यार ज्यादा है, भैया से प्यार ज्यादा है, अहले हाना से प्यार ज्यादा है, बीवी बच्चों से प्यार ज्यादा है, अपने घर बार से प्यार ज्यादा है, अपनी दुकानों मुकाम से प्यार ज्यादा है, फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे फासिकों को हिदायत ही नहीं देता। हराम मोहब्बत तो हराम है, गैर महरम से मोहब्बत तो हराम है, माशूका से मोहब्बत तो हराम है, महबूबा से मोहब्बत तो हराम है, लेकिन बीवी से मोहब्बत तो जायज़ है, बाप से मोहब्बत तो जायज़ है, बेटे से मोहब्बत तो जायज़ है, भैया से मोहब्बत तो जायज़ है। लेकिन जब बाप की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, भैया की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ जाती है, वो भी तबाही का बाइस है, वो भी तबाही का सबब है। हज़रात गिरामी कदर, इस नुक्ताए अजीम को, इस उक़दाए अजीम को हकीकी मानों में हल किया तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार से हल किया। ना किसी के रोब को दिल में जगा दी, ना किसी की हैबत को दिल में जगा दी। और जब वक़्त आया मोहब्बत के इम्तिहान का तो हाजरा को वादी बेआबो गया में छोड़ना गवारा कर लिया। और जब वक़्त आया मोहब्बत के इम्तिहान का तो इस्माइल के गले के ऊपर छुरी चलाने के ऊपर भी आमादा और तैयार हो गए। हज़रात गिरामी कदर, ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कुछ इस अंदाज में कबूल मंजूर फरमा लिया
कि आपकी छुरी के नीचे जन्नत के मेंढे को लटा दिया। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अपनी तरफ से हजरत इस्माइल को ज़िबा फरमा चुके थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो इस मसले के अंदर बगैर किसी हिचकिचाहट के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कामयाब और कामरान हो चुके थे। हजरत गिरामी कदर कल जो है इंशाअल्लाह ईद कुर्बान का पहला दिन होगा। हम भी जानवर के गले के ऊपर छुरी को चलाएंगे, हम भी जानवरों को जमीन के ऊपर लटाएंगे। लेकिन हजरत गिरामी कदर सोचने की बात यह है, क्या हमारे दिल के अंदर वो जज्बा मौजूद होगा जिसने इब्राहीम को इस्माइल के गले के ऊपर छुरी चलाने के लिए मादा तैयार कर दिया? क्या हमारी जो है झूठी हाइशात पे चलती है छुरी जो है? हमारी ईद तो लहू के गिराने का नाम है, हमारी ईद तो खाल को उतारने का नाम है। लेकिन परवरदिगार आलम ने समर का एक गोश्त की जरूरत नहीं, उसको तुम्हारे बहाए जाने वाले लहू की जरूरत नहीं, बल्कि उसको उस दिल के तकवा की जरूरत है जिसने इब्राहीम को इस्माइल के गले के ऊपर छुरी चलाने के लिए मादा तैयार कर दिया। हजरत गिरामी कदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतना आला किरदार छोड़ा, इतना अजीम उसवा छोड़ा, इतना अजीम नमूना छोड़ा कि रहती दुनिया तक के लिए लोगों को ये बात समझा दी, खशियत भी परवरदिगार आलम की होनी चाहिए और मोहब्बत भी उसी की होनी चाहिए, डर भी उसी का होना चाहिए और प्यार भी उसी से होना चाहिए। हजरत गिरामी कदर परवरदिगार आलम जो रब्बे कदीर हैं, जो रब्बे अर्शे अजीम हैं, परवरदिगार आलम जो रब्बुल आलमीन हैं, परवरदिगार आलम जो रब्बे कायनात हैं, परवरदिगार आलम जो अव्वाना, उसी के सामने अपने आप को जालिम समझना, उसी के सामने अपने आप को हकीर समझना, उसी के सामने अपने आप को कमजोर समझना, उसी के सामने अपने आप को नातमा समझना, उसी के खौफ को दिल में जगा देना, उसी से उम्मीदों को बस्ता करना। गिरामी कदर हजरताना बाकी है, हमारी घरेलू जिंदगी के साथ है, हमारे अहलहाना के साथ है, हमारी आइली जिंदगी के साथ है। हजरत गिरामी कदर उस्वतुन हसनत कालूली कौमिहिम, जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों को मुहातिब होके कहा, इन्ना बुराउ मिनकुम वमिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, हम तुमसे भी बरात का इजहार करते हैं, तुम्हारे मबूदों से भी बरात का इजहार करते हैं, कफरना बिकुम, हम तुम्हारा इनकार करते हैं, व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदन हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, और हमारे और तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ की बुनियादें डल चुकी हैं हमेशा के लिए, जब तक तुम तौहीद कादिर मुतलक के ऊपर यकीन नहीं ले आते। हजरत गिरामी कदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस उक़दे को हल किया। समाजी मोहब्बत की असल बुनियाद क्या है? सियासी मोहब्बत की असल बुनियाद क्या है? मुआशरती मोहब्बत की असल बुनियाद क्या है? मेरी मोहब्बत जो है अपनी ज़ात के बंदे के साथ है, मेरी मोहब्बत अपने शहर के बंदे के साथ है, मेरी मोहब्बत अपने मोहल्ले के बंदे के साथ है, मेरी मोहब्बत अपने पेट के साथ है, मेरी मोहब्बत अपने मफाद के साथ है, मेरी मोहब्बत अपनी ज़रूरियात के साथ है, मेरी मोहब्बत जो है अपने कारोबार के साथ है। लेकिन इब्राहीमी मोहब्बत क्या है? इब्राहीम का अकीदा क्या है? मोहब्बत अगर होनी चाहिए अल्लाह की रिजा के लिए होनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की जात के हवाले से होनी चाहिए। जो परवरदिगार आलम का ताबेदार है, जो परवरदिगार आलम वफादार है, एक रियाया की हैसियत से, एक मामूली से अल्लाह की रियाया होने के नाते, जब मेरा बादशाह वही है, जब मेरी पार्टी का सरबराह खुद हालिके कायनात है, जब मेरे जत्थे का सरबराह खुद हालिके कायनात है, जब मेरे जत्थे का वाली और मौला खुद परवरदिगार आलम है, तो क्यों कर मुमकिन है जो उसका बागी हो उससे मुझे प्यार हो? क्यों कर मुमकिन है जो उससे बगावत करने वाला हो, जो उससे अदावत रखने वाला हो, जो उससे दुश्मनी रखने वाला हो, उससे मुझे प्यार हो? हजरत गिरामी कदर मोहब्बत रंग की वजह से नहीं होनी चाहिए, नस्ब की वजह से नहीं होनी चाहिए, नस्ल की वजह से नहीं होनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत अगर होनी चाहिए तो अर्श अजीम के रब की तौहीद के नाते होनी चाहिए। हजरत गिरामी कदर इसी उक़दे को हजरत अल्लामा इकबाल ने कुछ यूं हल फरमा दिया, अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पे इन्हिसार, और कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। हजरत गिरामी कदर कुरान मजीद ने इस हवाले से हमारे जहन की तमाम तबीज़ तहों के पर्दे को उतार दिया, हमारे दिल के ऊपर मौजूद जितने भी मोटे मोटे पर्दे हैं उनको उतार दिया। हजरत गिरामी कदर कायनात के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इंतहाई बुलंद बाला मुकाम है, कायनात के अंदर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का इंतहाई बुलंद बाला मुकाम है। हजरत गिरामी कदर मैं जब भी कभी तिलावत करता हूँ, मैं जब भी कभी कुरान को पढ़ता हूँ, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़े को पढ़ता हूँ, मेरे ऊपर कभी तारी हो जाती है, किस कदर बदकुमाश थे, किस कदर बद किरदार थे, किस कदर हद तदाल से तजावुज़ फरमाने वाले थे। हत्ता कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी ऑफर उनको फरमा दी, हाउलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम फत्तकुल्लाह वला तुहज़ूनी फी ज़ईफ़ी अलैसा मिनकुम रजुल रशीद,
ओ आओ तुम इस बुरे काम को छोड़ दो, मैं अपनी बेटियां, कौम की पाक बेटियां तुम्हारे अकद के अंदर दे दूंगा। हजरात गिरामी कदर सच्ची तौबा के बाद आपके दिल के अंदर फिर भी बुरे बंदे से कराहत रहती है, लेकिन ये नबियों की शान है, ये नबियों का ज़रफ़ है, ये नबियों का हौसला है कि सच्ची तौबा करने के बाद बस्ती के साबका बदकिरदारों को अपनी बेटियां और कौम की बेटियां अकद में देने के लिए तैयार थे। हजरत गिरामी कदर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के जब मैं कारहाए नुमाया को पढ़ता हूँ, जब उनकी लिल्लाहियत को पढ़ता हूँ, जब उनके तकवा और तहारत को पढ़ता हूँ, जब उनके तस्किये को पढ़ता हूँ, जब उनकी दुआओं को पढ़ता हूँ, जब उनकी मुनाजात को पढ़ता हूँ, जब इन अल्फाज को पढ़ता हूँ कि सैयदना लूत ने समर का ऐलान फरमा दिया, रब्बी नजीनी वाहली मिम्मा यामलून, अल्लाह मुझको भी मेरे घर वालों को भी इस सारी की सारी बुराई से बचा के रखना, अल्लाह इस बुराई को मेरे घर से दूर दूर रखना। अल्लाह तबारक व तआला मैं तेरा रसूल हूँ, मैं तेरा नबी हूँ, लेकिन बुराई से बचाने वाली फकत तेरी ही जात है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, न उसके सिवा किसी का होल है, न उसके सिवा किसी की ताकत। हजरात गिरामी कदर फिर मुझे कुरान ये बात समझाता है, परवरदिगार आलम ने अपने नबी की फरियाद को कबूल मंजूर फरमा दिया। फनज्जैनाहु व अहलहु अजमाइन, अल्लाह ने सारे अहले हाना को बचा लिया। तो ऐसे आलम में 27 के करीब मुकामात के ऊपर, 25 से जायद मुकामात के ऊपर हजरात गिरामी कदर मुझे एक ही अल्फाज पढ़ने को मिलते हैं, फनज्जैनाहु व अहलहु अजमाइन इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, कि अल्लाह ने उसके सारे अहले हाना को बचा लिया, इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, मगर एक बुढ़िया को नहीं बचाया जो पीछे रहने वालों में शामिल हुई। हजरात गिरामी कदर सैयदना लूत अलैहिस्सलाम और सैयदना नूह की बीवियां उन्हीं के बिस्तरों पे सोने वालियां, उसी के सामने सुबह शामों को बिताने वालियां, उन्हीं के साथ बहारों हजाओं को देखने वालियां, उन्हीं के साथ गर्मी और सर्दी को देखने वालियां। लेकिन जब उन्होंने अपने शोहरों की दावत को नहीं माना, जब उनके पैगाम को नहीं माना, जब उनकी दावत हक को नहीं माना, जब उनकी दावत तौहीद को नहीं माना, तो परवरदिगार आलम ने समर का ऐलान फरमा दिया, कानता तहता बदैनी मिन इबादिना सालिहैनी, वो दो औरतें थी जो मेरे नेक बंदों के तहत रहने वालियां थी। कानता तहता बदैनी मिन इबादिना सालिहैनी, मेरे नेकोकार बंदों के साथ रहने वालियां। फखानतहुमा, लेकिन उन्होंने अपने शोहरों की दावत को नहीं माना, उनकी पैगाम को नहीं माना, उनकी ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत और कलमाए तौहीद को नहीं माना। फिर क्या हुआ? फखानतहुमा फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया, फिर उनके काम, उनकी दुनिया की जिंदगी किसी काम नहीं आई, नबियों की रिफाकत फिर उनके किसी काम नहीं आई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग में जब बड़े बड़े मुजरिमों को दाखिल फरमाना है, तो ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला सूरह तहरीम में अजीब ही ऐलान फरमाते हैं। ऐसे आलम में जब जहन्नम के भांबड़ को बचाया जाएगा, जब जहन्नम की आग को जलाया जाएगा, जब हाविया के अंदर, जब होतावा के अंदर, जब नारे जहीम के अंदर बड़े बड़े मुजरिमों को फेंका जाएगा, ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला इस अमर का ऐलान फरमाते हैं, कानता तहता बदैनी मिन इबादिना सालिहैनी फखानतहुमा फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया वकील लदखुलन नारा मादाहिलीन। उस दिन जहन्नम की आग के अंदर सैयदना नूह और सैयदना लूत की बीवियों को भी दाखिल कर दिया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने कलमाए तौहीद को नहीं माना, दावत तौहीद को नहीं माना। और हजरत गिरामी कदर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की बीवी के साथ साथ आपका अपना बेटा जब दावत तौहीद को नहीं मानता, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम उसको दावत देते हैं, या बुनय्यर कम्माना वला तकुम मल काफिरीन, ए मेरे बेटे हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल ना होना। बेटे को तूफान के आने का यकीन नहीं था, सीलाब के आने का यकीन नहीं था, तूफान बादो बारा का यकीन नहीं था, अल्लाह के अमर का यकीन नहीं था। वो तो इस्तेहजा के रास्ते पे था, मजाक के रास्ते के ऊपर था, बेयकीनी के रास्ते पे था, बेईमानी के रास्ते के ऊपर था। कहने लगा सावीला जबली यासिमुनी मिनल मा, कौन से पानी की बात है, कौन से सीलाब की बात है, कौन से तूफान बादो बारा की बात है। सावीला जबली यासिमुनी मिनल मा, वो सामने नजर आने वाला ऊंचा पहाड़ जो है मुझे अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। सैयदना नूह को अल्लाह के अजाब की हकीकत का पता था, उसका पूरा का पूरा इस्तेहजार था। आलिम थे, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह ताला के नेकोकार बंदों में इंतहाई बुलंद के ऊपर फाइज थे। कहा ला सिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहीम, कहा बेटे जब अल्लाह का अजाब आ जाता है फिर उसको टालने वाला कोई भी नहीं होता। ला सिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहीम, बेटे अल्लाह का अजाब आने वाला है और जिसके पर अल्लाह का रहम होगा, जो मेरी कश्ती का मुसाफिर होगा वही बचेगा, बाकी सारे के सारे डूब जाएंगे। हजरात गिरामी कदर
मुकालमा जारी है। ऐसे आलम के अंदर सैलाबी लहरें जो हैं, सैलाब की लहरें जो हैं बस्ती और करिया में दाखिल होती हैं, सैयदना नूह के बेटे को भी बहा के ले जाती हैं। ऐसे आलम में सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम के सामने हाथों को फैला दिया, कहा इन्ना बनी मिन नहली व इन्ना वादकल हक व अंता हकमुल हाकिमीन। अल्लाह आपकी मेरे से बात हुई थी कि मेरे अहले खाना के ऊपर अज़ाब नहीं आएगा। अल्लाह ये क्या मामला है, अल्लाह ये क्या माजरा है, मेरा बेटा तो मेरे अहल में शामिल है, अल्लाह वो मेरी आंखों के सामने डूब रहा है। हज़रात गिरामी कदर परवरदिगार आलम ने आसमां की बुलंदियों से समर का ऐलान फरमा दिया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। हज़रात गिरामी कदर आखिरी टुकड़े का तर्जुमा मैं नहीं करूंगा, आप खुद जाके अपने घरों के अंदर कुरान मजीद के तर्जुमे को देख लें। हज़रात गिरामी कदर पहले हिस्से का तर्जुमा मैं आपके सामने कर देना चाहता हूं। परवरदिगार आलम ने समर का ऐलान फरमा दिया, ए नूह तेरा बेटा तेरे अहल में शामिल नहीं, इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। तेरा मनहज और है, उसका मनहज और है, तेरा अकीदा और है, उसका अकीदा और है। तू मेरी तौहीद पर यकीन रखने वाला है, वो मेरी तौहीद से मुनहरिफ है। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह ने तंबीह फरमाई, ए नूह आपने ऐसा सवाल नहीं करना। हज़रात गिरामी कदर गोया कुरान ने इस उक़दे को हल फरमा लिया। मेरा आपका ताल्लुक जो है उसकी बुनियाद लिल्लाहियत को होना चाहिए, मेरी और आपकी निस्बत जो है वो तौहीद की बुनियाद पे होनी चाहिए। हज़रात गिरामी कदर आइए जरा एक और मंजर पे गौर कीजिए। हज़रत खलीलुल्लाह हैं, आदर को तौहीद की दावत देते हैं, जब वो तौहीद की दावत को इख्तियार नहीं करता फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी तफरीक फरमा दी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मंजिल और है, आदर की मंजिल और है। इब्राहीम जन्नत के बुलंद बाला मुकाम पे फायद है, लेकिन आदर के मुकद्दर में नाकामी है, आदर के मुकद्दर के अंदर कामयाबी के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। हज़रात गिरामी कदर हाशमी और मुत्तलबी लोगों में जिन लोगों ने हज़रत रसूलुल्लाह के कलमे को जुबान से अदा फरमा लिया, आपके रिश्तेदारों में कितने बुलंद बाला थे। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब पे अल्लाह ने रहम का नज़ूल फरमा दिया, हज़रत अली इब्न अबी तालिब के ऊपर अल्लाह ने रिज़वान का नज़ूल फरमा दिया, हज़रत जाफर तैयार के ऊपर मालिक कायनात ने अपने करम का नज़ूल फरमा दिया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के ऊपर अल्लाह ने अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा दिया, हज़रत हमज़ा को अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदुश शुहदा बना दिया। हज़रात गिरामी कदर लेकिन इन्हीं हाशमी मुतलबियों में से जिन लोगों ने हज़रत रसूलुल्लाह के मनहज को नहीं माना, जिन्होंने आपकी दावत को नहीं माना, जिन्होंने आपके नुक्ता नजर को नहीं माना, उनका क्या अंजाम हुआ। हज़रात गिरामी कदर हज़रत अब्बास के मुकाबले में, हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के मुकाबले में, हज़रत अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले में, हज़रत जाफर तैयार के मुकाबले में हज़रात गिरामी कदर अबू लहब का अंजाम क्या हुआ। ये सारे के सारे जन्नती हैं, ये सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला के औलिया में शामिल हैं, लेकिन अबू लहब का अंजाम क्या है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया और हजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते कदस के बारे में हर्जा सराई करने वाले अबू लहब, जा तेरे हाथ टूट जाए, मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, न तेरा माल तेरे किसी काम आया, न तेरा पेशा तेरे किसी काम आया। अल्लाह तबारक व तआला ने समर का ऐलान फरमा दिया, व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब, अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया। जिस तरह अबू लहब नाकाम है, उसकी बीवी भी नाकाम है। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, अल्लाह ने उसके गले के अंदर आग के हार को या मूंज की रस्सी को डाल दिया। हज़रात गिरामी कदर सोचने की बात यह है, कबीला बनु हाशिम के वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की रिज़वान के हकदार बने, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के हकदार बने। एक तरफ वो औलिया की जमात है, सहाबा की जमात है, एक तरफ नाकाम और नामुराद अबू लहब है। फर्क क्या है? उन लोगों ने कलमाए निजात को इख्तियार फरमा लिया, उन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह को इख्तियार फरमा लिया, और इस अबू लहब ने कलमाए निजात से ला तल्लुकी को इख्तियार कर लिया। हज़रात गिरामी कदर क्या आज हमारी मोहब्बतें, क्या आज हमारे ताल्लुकात दीन की बुनियाद पे हैं? क्या आज हमारे ताल्लुकात तौहीद की बुनियाद पे हैं? क्या आज हमारे ताल्लुकात ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर हैं? नहीं नहीं। हज़रात गिरामी कदर हम तो जरूरियात के बंदे हैं, मफादात के बंदे हैं, अब्दुद दिरहम हैं, अब्दुद दीनार हैं।
अब्दुल हमीसा हैं, चादर के बंदे हैं, कमीज के बंदे हैं, मफादात के बंदे हैं, जातियात के बंदे हैं। जहां से मुफाद मिल गया वहीं पे लुढ़क गए, जहां से साथ मिल गया वहीं पे लुढ़क गए। हजरत गिरामी कदर अकीदा बरावल वला हजरत इब्राहीम के तरके में शामिल है, हजरत रसूलुल्लाह के तरके में शामिल है, कुरान मजीद के बतलाए हुए अकीदे में शामिल है। हजरत गिरामी कदर जब तक ये अकीदा मजबूत था उम्मत भी मजबूत थी, जब ये अकीदा मजबूत था उम्मत भी गालिब थी। हजरत गिरामी कदर रहमतुल कुबरा टूट गई इसलिए कि हम अकीदा बरावल वला पे कायम और दाइम थे। ईरान भी टूट गया इसलिए कि हम अकीदा बरावल वला पे कायम थे। मिस्र भी ताराज हुआ इसलिए कि हम अकीदा बरावल वला पे कायम थे। जब हमने इस अकीदे को छोड़ा, जब कौमों में तकसीम हुए, जब नस्लों में तकसीम हुए, जब रंगों में तकसीम हुए, असबियतों में तकसीम हुए, फिरकों में तकसीम हुए, हमारी हैबत भी पारा पारा हुई, हमारी कुव्वत भी पारा पारा हुई। हजरात गिरामी कदर हम पंजाबी थे, पठान थे, पख्तून थे, सिंधी थे, बंगाली थे, लेकिन जब हम यकजान थे हमने एक ही नारे को लगा दिया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बर्रे सगीर के तूल अर्ज में जब ये नारा लगा, हिंदुओं की मक्कारी के बावजूद, अंग्रेजों की जबर और उनकी साम्राज्यियत के बावजूद मुसलमानों ने आजादी को हासिल किया, अपने वतन को हासिल किया, अर्ज पाकिस्तान को हासिल किया, जिसका दारुल हलाफा आज भी हकीकी मानों में हो ना हो लेकिन नाम के लिहाज से तो आज भी इस्लामाबाद है। हजरात गिरामी कदर, लेकिन जिस वक्त हमने इस अकीदे को छोड़ा, जब इस अकीदे से इन्हिराफ किया, हमारी कुव्वत भी पारा पारा हुई, हमारा जत्था भी पारा पारा हुआ। हजरात गिरामी कदर, बंगालियों ने कहा हमने अपने अलग वतन को लेना है, हमने उनको ये बात कही, हम कलमा तैयबा को मानने वाले हैं, लेकिन कौम परस्त रहनुमाओं के मुकाबले के ऊपर सियासी रहनुमाओं ने कहा इधर तुम हो जाओ, इधर हम हैं, इधर तुम हो, इधर हम हैं। इन्होंने कहा हम गैर बंगाली हैं, उन्होंने कहा तुम बंगाली हो। हजरात गिरामी कदर, दीनदार लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, इस बात का ऐलान करते रहे वो भी कलमा पढ़ने वाला है, मैं भी कलमा पढ़ने वाला हूं, वो भी अल्लाह को एक मानने वाला है, तुम भी अल्लाह को एक मानने वाले हो, वो भी किबले की तरफ मुंह करके नमाज को अदा करने वाला है। हजरात गिरामी कदर, लेकिन कौम परस्त रहनुमाओं की तहरीक कामयाब हुई, कौमियत का वो तसव्वुर जो खिलाफ दीन था उसका गलबा हुआ। हजरात गिरामी कदर, इस्लाम के नाम के ऊपर हासिल करने वाला वतन जो था कौमियत की बुनियाद पर दो टुकड़ों में तकसीम हुआ। बंगालियों ने अपना वतन अलग कर लिया और गैर बंगाली एक तरफ हो गए। हजरात गिरामी कदर, ऐसे आलम में इंदिरा गांधी बड़ा ही खुश हुई और इसने इस अमर का ऐलान किया और इस बात का इजहार किया, मैंने दो कौमी नजरिए को हलीज बंगाल के अंदर गर्क कर दिया। हजरात गिरामी कदर, बचा खुचा पाकिस्तान जो था, इसकी मजबूती, इसकी यकजहती, इसका इत्तेहाद, इसकी तरक्की आज भी कलमा तैयबा के अंदर पिन्हा है। लेकिन हजरात गिरामी कदर, कोई सराय की बेल्ट की बात करता है, कोई हिंदुओं की बात करता है, कोई पंजाबी की बात करता है, कोई बलोची तासुब की बात करता है, कोई पख्तून बेल्टों की बात करता है, कोई सिंध के कार्ड की बात करता है। हजरात गिरामी कदर, ऐसे आलम के अंदर पाकिस्तान को बचाने वाली एक ही चीज है, वो जो इब्राहीम का अकीदा है, वो जो अकीदा बरावल वला है। हजरात गिरामी कदर, सिंधी की जुबान और है, सिंधी का कल्चर और है, बलोची की जुबान और है, बलोच का कल्चर और है। अगर हमने उनको कलमे की बुनियाद के ऊपर मुश्तमिल न किया, हम मजीद कमजोर होंगे, हमें मजीद दरारें बढ़ती जाएंगी। हजरात गिरामी कदर, पूरी उम्मत को मुत्तहिद कर देने वाला, पूरी उम्मत को यकजा कर देने वाला, पूरी उम्मत को यकसू करने वाला एक ही कलमा है। दावत को इख्तियार किया। मुसअब इब्न उमैर ने अपने भाई को कस के बांधा और कहा इसकी माँ बड़ी अमीर है, अपने साथी को कहा इसको कस के बांधो, इसकी माँ बड़ी अमीर है, इसको छुड़वाने के लिए जिजिया देगी, इस्लाम अमीर हो जाएगा। हजरात गिरामी कदर, मुसअब के भाई ने सैयदना मुसअब के चेहरे को देखा, आवाज को देखा, कहा मुसअब इस्लाम ने तुझे इतना संगदिल कर दिया है, अपने माँ जाए भाई को भी नहीं पहचानता। कहा तू मेरा भैया नहीं बल्कि मेरा भैया वो है, तुझको बांध रहा है। हजरात गिरामी कदर, बदर के मार्के में इधर भी कुरैशी थे, उधर भी कुरैशी थे। अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए कुरैशी जो थे, इस तरफ के कुरैशी जाहलियत के लंबरदार थे, इस तरफ के कुरैशी तौहीद के लंबरदार थे। हजरात गिरामी कदर, टकराव हुआ, तलवारें चली। अल्लाह को इन तलवारों का चलना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, हाज़ान हस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम, ये दो जमातें थी, ये दो गिरोह थे जो अल्लाह के लिए लड़े, अल्लाह की तौहीद के लिए लड़े, अल्लाह की वहदानियत के लिए लड़े। हजरात गिरामी कदर, आज कहां पे अल्लाह की वहदानियत का जज्बा है, कहां पे अल्लाह की तौहीद का जज्बा है? आजकल तो हर जगह पे कंप्रोमाइज की बात है, आजकल तो हर जगह पे मुदाहनत तौहीद को अपने पीछे रहने वालों के लिए जिंदा दावत बना दिया और इस अकीदे को छोड़ के गए। तुम्हारी मोहब्बतें लिल्लाह होनी चाहिए, तुम्हारी मोहब्बतें फिल्लाह होनी चाहिए। इंशाअल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से जब ईद कुर्बान के मौके पे दावत इब्राहिमी को जिंदा किया जाएगा, तौहीद के अबलाग को आम किया जाएगा, वहीं पर इस पैगाम को भी समझने की कोशिश की जाएगी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरके में ये बात भी शामिल है, बंदा अमीर हो या गरीब हो, बंदा PhD हो या मैट्रिक पास हो, अगर वो तौहीद का लंबरदार है, मेरी मोहब्बतों का महवर है, एक रेड़ीबान है, गरीब है, मैले कपड़ों वाला है, लेकिन तौहीद परस्त है, उससे मुझे मोहब्बत होनी चाहिए। और दूसरी तरफ मर्सिडीज बेंज के ऊपर बैठने वाला, BMW के ऊपर बैठने वाला, बड़े बैंक बैलेंस वाला, बड़ी बिल्डिंग वाला, लेकिन अल्लाह का बागी है, उससे मुझे नफरत होनी चाहिए। हज़रात गिरामी कदर जब ये बात समझ में आ जाएगी, उम्मत दोबारा तवाना हो जाएगी, दोबारा ताकतवर हो जाएगी, साम्राज्यियत का बुत जो है पाश पाश हो जाएगा, कुफर की यलगार रुक जाएगी, कुफर का रोबर दबदबा मिट जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें दावत इब्राहिमी से तमस्सुक को इख्तियार करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इब्राहिमी दावत को इख्तियार करने वाले लोगों में शामिल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत अल्लाह के खौफ की दावत, अल्लाह से मोहब्बत की दावत है, और दावत का तीसरा नुक्ता अल्लाह के लिए मोहब्बत की दावत और अल्लाह के दुश्मनों से अदावत की दावत है। हज़रात गिरामी कदर हम अपने दुश्मन को तो माफ़ नहीं करते, सगे भाई को मामूली सी बात के ऊपर 10-10 साल कलाम नहीं करते, सगी बहन के साथ मामूली से ताने के ऊपर 5-5 साल कलाम नहीं करते, बहू बेटी की मामूली सी गलती को कई बरस तक माफ नहीं करते, सास के मामूली से ताने को कई बरस तक माफ नहीं करते, बंटवारे कर लेते हैं, घरों को अलहदा कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह के बारे में बिल्कुल ही बेहिस हैं, अल्लाह के बारे में बिल्कुल ही आजाद हैं, लिबरल हैं। अल्लाह के दुश्मनों की हर्जा सराई को सुनकर, अल्लाह के दुश्मनों की अफवाह को सुनकर और अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मनों की बकवासियात को सुनकर भी हम उनसे कंप्रोमाइज की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, लिबरलिज्म की बात करते हैं। हज़रात गिरामी कदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत यह है, जो अल्लाह वाले होते हैं उनसे हमें प्यार होना चाहिए, और जो अल्लाह के दुश्मन हैं हमें उनसे नफरत होनी चाहिए। हज़रात गिरामी कदर ये शेख होना, राजपूत होना, जट होना, ये तारुफ के जरिए हैं, असबियत के जरिए नहीं। मैं शेख हूं, लेकिन अल्लाह की कसम है शेख होना किसी फजीलत की बात नहीं, शेख होना किसी बुलंदी की बात नहीं, अल्लाह की कसम शेख होना किसी तौर का भी आला होने की अलामत नहीं, सिर्फ बस एक बरादरी की निस्बत है, एक तारुफ का जरिया है, एक पहचान है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से कुरान मजीद को याद किया, जब से इल्म दीन को हासिल किया, ना हजरत अल्लामा शहीद ने कभी अपनी जात की निस्बत, अपने वजूद की निस्बत अपनी जात के साथ की, न कभी मैंने अपने वजूद की निस्बत अपनी जात के साथ की। हाफिज कुरान होना या दीन का चौकीदार होना या दीन का मामूली सा मुबल्लिग होना अपनी बस्ती के साथ, अपने कबीले के साथ निस्बत से कहीं आला निस्बत है। हज़रात गिरामी कदर इंसान के अंदर इतना अपने अकीदे के साथ उसको मोहब्बत होनी चाहिए, अकीदे के साथ प्यार होना चाहिए कि किसी भी कौम से ताल्लुक रखने वाला आदमी, हाँ कितना भी जो है वो नेक, अगर वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखता हो, हाँ वो मुझसे कितनी भी दूर की कौम क्यों ना हो, मुझे उससे प्यार होना चाहिए, मुझे उससे मोहब्बत होनी चाहिए, मुझे उससे अकीदत होनी चाहिए। हज़रात गिरामी कदर हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह राजपूत थे, सूफी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ओट थे, हजरत शाहुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला गुज्जर थे। हज़रात गिरामी कदर मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी के अंदर बेशुमार उलमा को देखा। हजरत मुफ्ती अबैदुल्लाह हफीज साहब हाफिज़हुल्लाह बल्लोच हैं,
हजरात गिरामी कदर इसी तरह हजरत प्रोफेसर सनाउल्लाह खान साहब जो थे वो खान थे, लेकिन हजरात गिरामी कदर हमारा उनसे प्यार है, दीन की वजह से प्यार है, हमें उनसे अकीदत है, दीन की निस्बत से अकीदत है, हमारे दिल के अंदर उनका प्यार है, दीन की निस्बत के साथ उनके साथ प्यार है। अभी हालिया कल ही अजीबो गरीब वाक़या रूनुमा हुआ, हिंदू से मुसलमान होने वाले और मुसलमान से मुहद्दिस बन जाने वाले और मुहद्दिस भी सदा के बन जाने वाले कि हजरत रसूलुल्लाह की तमाम हदीस को एक ही किताब में जमा फरमा देने वाले अल जामे अल कामिल के अजीम शान मुसन्निफ और मुहद्दिसुल असर हजरत ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमतुल्लाह अलैह मदीना के अंदर रुखसत हुए। हजरत गिरामी कदर हजरत जिनका हकीकी नाम मोहम्मद अब्दुल्ला था लेकिन ज़ियाउर रहमान के नाम से मशहूर थे। हजरत गिरामी कदर अल्लाह ताला ने इस तरह उनको चुन लिया कि एक हिंदू मुसलमान हुआ, मुसलमान से मुहद्दिस बना, मुहद्दिस से अल्लाह ने उसको शहर मदीना के अंदर पहुंचा दिया। मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर कई बरस तक तदरीस के फरीजे को अंजाम देने वाला ये हिदमत हदीस का सूरज जो था कल मदीना तैयबा के अंदर डूब गया। मैंने हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान के इंतकाल को अपने दिल के ऊपर एक चरका लगते हुए महसूस किया। क्या वजह है? ज़ियाउर रहमान हिंदुस्तान के थे लेकिन मुझे उनसे मोहब्बत है, मुझे उनसे प्यार है, इसलिए कि वो काली कमली वाले के वफादार थे, इसलिए कि वो रब ताला के तौहीद के नंबरदार थे। हजरात गिरामी कदर ये सारी की सारी निस्बतें जो हैं अल्लाह ताला की तौहीद की निस्बत के मुकाबले में जो दुनियावी निस्बतें हैं इनकी कोई भी हैसियत नहीं, इनकी कोई भी हकीकत नहीं। चुनाचे हमारा प्यार जो होना चाहिए अल्लाह के लिए होना चाहिए, अल्लाह की तौहीद के लिए होना चाहिए। हजरात गिरामी कदर दूसरा ऐलान जो है उसको मैं आपके सामने कर देना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा ईद उल अज़हा का जो इज्तिमा है वो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर 6:15 बजे इंशाअल्लाह ईद की नमाज होगी। आप तमाम लोगों ने वहां पे पहुंचना है। मामूली से कुछ रुकावटें खड़ी करने की बात शरारती नासर कोशिश कर रहे हैं। हाफिज साहब PHA वाले मौजूद हैं, मेरी इनसे जो है टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू हुई है। मैंने कहा हाफिज साहब हम हमेशा वहीं पे ईद पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह आज भी वहीं पे ईद पढ़ेंगे। हम छोटी मोटी रुकावटों से घबराने वाले नहीं। अल्लाह के फजल करम से इंतहाई बेकस और बेबस होने के बावजूद अल्लाह पे तवक्कल करके हजरत रसूलुल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में उतार के हम अपने हक को हासिल करना जानते हैं। ईद पढ़ना हमारा हक है, हमें इस हक से कोई महरूम नहीं कर सकता। हजरात गिरामी कदर कुर्बानी की खालों में भी कुछ रुकावटें पेश करने की कोशिश की गई। इंशाअल्लाह हम ना दहशत गर्द हैं, ना हम कानून शिकन हैं, हम इंसाफ पसंद हैं, हम इतदाल पसंद हैं, आईन और कानून का एहतराम करने वाले हैं। हमने कभी मुआशरे में फसाद की दावत नहीं दी। इंशाअल्लाह इस मरकज को आपने अपनी खालें भी जमा करवानी है। और हजरात गिरामी कदर आखिर में इंतहाई तवज्जो तलब बात यह है, हजरात गिरामी कदर हम हजरत रसूलुल्लाह के नौकर हैं, हजरत रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हजरत रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, आपसे प्यार करने वाले हैं। जिससे आपने प्यार किया हमारा भी उससे प्यार है। हजरात गिरामी कदर सैयदना अली इब्ने तालिब से हमें प्यार है। हजरत रसूलुल्लाह के दामाद थे, फातिह हैबर थे, असदुल्लाह गालिब थे, कातिल मरहब थे। हमें हसन हुसैन से प्यार है इसलिए कि हजरत रसूलुल्लाह के नवासे थे, जन्नत के सरदारों में से सरदार हैं, जन्नत के बल्कि हकीकत में जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हजरत रसूलुल्लाह के फूलों में से फूल हैं। हजरत गिरामी कदर हमें फातिमातुज़ ज़हरा से अकीदत है इसलिए कि आसमां के चेहरे ने इतनी बुलंद बाला हस्तियों को कभी कभार ही देखा होगा हजरत गिरामी कदर। लेकिन इसके साथ साथ हमें अम्मी आयशा से भी प्यार है, हमें अम्मी हफ्सा से भी प्यार है, इसके साथ साथ हमें हजरत सिद्दीक अकबर से भी प्यार है, हजरत फारूक आजम से भी प्यार है, हजरत ज़ुन्नूरैन से भी प्यार है, हजरत रुकैया हजरत उम्मे कुलसूम की अकीदत भी हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। जिसकी निस्बत कमली वाले के साथ है उससे मुझे प्यार है। हजरात गिरामी कदर इन तमाम मुकद्दसात के एहतराम को यकीनी बनाने के लिए पंजाब असेंबली में बिल को पेश किया गया। अहले सुन्नत जो हैं उन्होंने कभी अहले बैत की शान अक़दस में गुस्ताही का तसव्वुर भी नहीं किया। जो हैदर कर्रार का गुस्ताख है हमें उससे नफरत है, हमें उससे अदावत है। जो हसन हुसैन का गद्दार है हमें उससे नफरत है, उससे अदावत है। जो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से बरात का इजहार करता है मुझसे बरी हैं। लेकिन हजरात गिरामी कदर अहले तशय्यो को भी इस बात को समझना पड़ेगा। हमें सैयदा सिद्दीका के साथ प्यार है, सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ प्यार है, सैयदना फारूक आदम के साथ प्यार है। आप उनका एहतराम नहीं करना चाहते, आप अपने घर में बैठिए लेकिन उनके बारे में कोई हर्जा सराई मत कीजिए, उनके बारे में कोई गुस्ताहाना बात ना कीजिए। अगर मिली यकजहती काउंसिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने ज़ाब्ता इहलाक के ऊपर दस्तखत करके इस बात को तस्लीम कर लिया है कि तकफीर सहाबा कुफर है और तनकीस सहाबा हराम है, तो आज वबेल
अल्हम्दुलिल्लाह किस बात का, आज एहतजाज किस बात का, आज जो है बिल नामंजूर के नारे किस बात के, आज करारदाद नामंजूर के नारे किस बात के। हजरात गिरामी के अंदर बकाए बाहमी का एक ही रास्ता, सिद्दीक अकबर की अजमत को तस्लीम किया जाए, फारूक आजम की अजमत को तस्लीम किया जाए, जिन्नुरैन की अजमत को तस्लीम किया जाए। फिरका वारियत के हाथमे का एक ही रास्ता, सैयदा हदियतुल कुबरा की अजमत को तस्लीम किया जाए, सैयदा आयशा की अजमत को तस्लीम किया जाए, सैयदा हफ्सा की अजमत को तस्लीम किया जाए। मुआशरे के अंदर नफरत के हाथमे का एक ही रास्ता, अहले बैत इज़ाम के साथ साथ उम्महातुल मोमिनीन की ताज़ीम को भी यकीनी बनाया जाए, खुलाफाए राशिदीन की ताज़ीम को भी यकीनी बनाया जाए। पार्टी बाजी के अंदर, फिरका वारियत के अंदर उल्टी सीधी बातों को करना, खुलाफाए सलासा की खिलाफत का इनकार है, ये बात फिरका वाराना कशीदगी को बढ़ाने का सबब है, ये बात नफरतों को उजागर करने का सबब है। हम तो तवल्ला के कायल हैं, हम तो मोहब्बत के कायल हैं। हजरत अल्लामा शहीद ने कहा था, हसन हो फिर भी तवल्ला, हुसैन हो फिर भी तवल्ला, फातिमा तुज ज़हरा हो, हैदर करार हो फिर भी तवल्ला। तबर्रा हम करना नहीं जानते, सहाबा को बुरा कहना हम नहीं जानते। सहाबा खैरुल बरिया हैं, सहाबा जन्नत के राही हैं, सहाबा खैरुन नास हैं, सहाबा खैरुल उमम हैं, सहाबा जन्नती हैं, सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाईन हैं, सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम हैं, सहाबा रज़ू अन्हु हैं, सहाबा हजरत रसूलुल्लाह की सोहबत से फैद उठाने वाले हैं, सहाबा हजरत रसूलुल्लाह के तिलामदा हैं, सहाबा हजूर अक़दस के साथ वक़्त को बिताने वाले हैं। इंशाअल्लाह सहाबा के तक़द्दुस को, अहले बैत इज़ाम की अज़मत को, उम्महातुल मोमिनीन की तक़द्दुस को, बिनातुन नबी ताहिरात की तहारत को इस वतन की फदाओं में मनवा के छोड़ेंगे और अज़मत सहाबा के परचम को इंशाअल्लाह इस मुल्क में लहरा के छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह इस बात को पर समझौता नहीं किया जा सकता। हम मोतबर और मोतदिल अहले तशय्युअ के उलमा को भी इसी बात की दावत देना चाहते हैं कि आप इस मौके के ऊपर मुल्क के अंदर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए, मुल्क को फिरका वराना नफरतों से बचाने के लिए अपना किरदार अदा कीजिए। हम फिरका परस्त अनासर के हाथों में यरगमाल मत बनिए, फिरका और नफरतों के अनासर और नफरतों के व्यापारियों के हाथ के अंदर अपनी लगामों को मत दीजिए। हम मोहब्बत के साथ आए हैं, हम प्यार के साथ आए हैं, सीने को खोल के आए हैं, हाथों को फैला के आए हैं, लेकिन हम एक ही बात का सवाल करते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। हजरत सिद्दीक का एहतराम मांगते हैं, हजरत फारूक ज़िन्नुरैन का एहतराम मांगते हैं, हजरत आयशा का एहतराम मांगते हैं। हजरत गिरामी का हमारा एहतराम का मुतालबा 100% जायज है, 100% आईनी है, 100% कानूनी है। इंशाअल्लाह पंजाब असेंबली से पास होने वाला बिल जो है गवर्नर हाउस से भी उसमें दस्तखत हो के रहेंगे इंशाअल्लाह, कहिए हो के रहेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह सहाबा की अजमत को इस मुल्क में यकीनी बनाया जाएगा और इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर अहले बैत इज़ाम और खुलाफाए राशिदीन के तक़द्दुस के ऊपर किसी किस्म के हरफ को नहीं आने दिया जाएगा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।